ہم جو آپ کے روبرو ہیں آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جس محفل میں اس محفل کا تعلق اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل سجی ہے اور ایسی محفل سجتی رہتی ہے. اسی میں ہم اور آپ حضرات آتے ہیں. اب اس میں جو ہم اور آپ آئے ہیں تو ہر شخص اپنی نیت کے مطابق کیا بات ہے بے شک ہر شخص اپنی نیت کے مطابق اور نیت اگر خالص ہو تو پھر کیا ہے نور اللہ نور بے شک. دیکھیے ایک محفل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب تھی مگر اس دور میں بھی سرکار مدینہ کی محفل سجتی ہے لیکن اس دور میں بھی مگر چونکہ ہم لوگ بھی کہوں تو وہاں تک ہے نہیں. ہم لوگ بقول حضرت ابو علی شاہ قلندر بقول ابو علی شاہ قلندر کی تو ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حضرت امیر خسرو پہنچے. امیر خسرو پہنچے تو بڑی لمبی چوڑی سواری. تو ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا یہ امیر خسرو تو مرید کس کا؟ تو کہا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ السلام. تو آپ نے کہا کہ محبوب الہی لفظ ہوتا ہے اللہ کے محبوب. تو نظام الدین تو ہے مگر محبوب الہی وہ نہیں ہے. اس بات کو امیر خسرو نے سنا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس لیے کہ مسلک صوفیہ میں تکرار نہیں ہے. وہ سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں. ظاہری رکھنے والے اس پر تکرار کرتے ہیں. اسی تکرار سے اختلاف اور پھر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کیا مطلب ہے. ہم جس کو تسلیم کرتے ہیں. تو جب امیر خسرو واپس ہوئے دلی آئے جیسے آج ایک کلام میں امیر خسرو کا سنا تو میرے ذہن میں اختلاف پیدا ہوا. اختلاف پیدا ہوا اس کو نہیں بتاؤں گا کہ کیوں اختلاف پیدا ہوا. دنیا کسی کی بات پر سچ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا تو ہاں دیکھو جیسے کہ ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پتھر ہے مگر سونا ہے تو اب تک دنیا کہے گی کہ صوفی صاحب کے بات کو انہوں نے سونا کہا ہے تو دیکھا جائے لیکن نہیں تو پتھر تھا. مگر جب ریسرچ کیا گیا تو دیکھا کہ نہیں سونا. تو جب بات میں فرق پڑے گی تو دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی. مگر وہ واقعی جو کہا تھا وہی ہو گیا تھا تو پتھر مگر جیسے آقا علیہ السلام نے بہت جگہ آپ نے جو کہا ہے سمجھنے کے لیے اولیاء کاملین نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے. جیسے خود بابا فرید شکر گنج نے جو ہے مٹی کے ڈھیلے کو کہا کہ سونا ہو گیا سمجھنے کے لیے. تو اس طرح یہاں پہ ہم کو سمجھنا یہ ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب جس بندے کو حاصل ہو گیا ہے اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دے دی کہ جو کہا ہے وہی ہو گیا. تھا نہیں میں ہو گیا کیونکہ معرفت الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جس بندے کو میری معرفت مل جاتی ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو امیر خسرو جب دلی پہنچے تو محبوب الہی نے پوچھا کہاں گئی. کئی روز کے بعد آیا کہا ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں. چلو کچھ گفتگو نکلی تو کہا کہ ابو علی شاہ قلندر نے کہا
महबूब इलाही नहीं है। जानते हैं महबूब इलाही मुस्कुराने वाला रंजीदा नहीं है। अब हमारे बारे में कोई कहे कि सूफी नहीं है तो क्या बताओ इसमें रंज की क्या बात है साहब? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए अब मुंतखब थे, मगर अबू जहल तस्लीम नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? उससे झगड़ा करोगे? नहीं। मगर यहाँ कौन का हाल तो बेहाल है। बेशक। तो मुस्कुराने लगे तो अमीर खुसरो भी सोचने लगे कि हजरत मुस्कुरा रहे हैं, हजरत की नहीं क्या बात है, वाह। मुस्कुरा रहे हैं। अब बहुत सोचने लगे कि वली साहब ने कहा था कि वो महबूब इलाही नहीं है, और हजरत को जब कहा तो हजरत मुस्कुरा रहे, वाह। क्या रंग है तो हजरत जानते हैं। पत्थर खा करके भी दुआएं देता होगा, चटाई पे बैठ कर भी शहंशाही करता होगा, जो पत्थर बांध के दुनिया को दर्द देता होगा। क्या बात है। काश मैं तो उस बारगाह कुस्म में इंतजार करता हूँ। ए अल्लाह, जिस्म दिया, जिसने तूने रूह अता की, जिसने अपने हबीब की मोहब्बत अता की, वाह। बीच मांगता हूँ तेरे दर से। और लेके क्या करूँगा? तो मुस्कुराने लगे। महबूब इलाही ने सोचने लगे कि क्या करना। फिर एक वक्त ऐसा आया, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में अमीर खुसरो पहुंचे तो एक बादशाह ने कहा था कि कुछ नज़्म, तो बोली साहब ये ऐसे मस्त कीर्ति ये नज़्म नहीं लेती है क्या? ऐसे भी मस्त हुए कि नज़्म नहीं लेते बादशाह। और अभी तो नज़्म तलब किया जाता है, क्या फिक्स किया जाता है। मगर हाँ, मैं तो ये कहूँगा हक परस्त को तलाश करें। ऐसा नहीं कि दुनिया खाली है, और दुनिया जिस तरह खाली हो जाएगी फिर क़यामत नहीं हो जाएगी। तो अमीर खुसरो से कहा, अमीर खुसरो मैं सब पूछ लेना कि वो महबूब इलाही कैसे मिले। तो गए अमीर खुसरो फिर दुआरी शक्ल अंदर किया तो मिले मिले फिर अपने शेख के कौल के मुताबिक, हालांकि पूछते नहीं, जब शेख ने कहा था तब उन्होंने पूछने की हिम्मत की जरूरत थी। कहा कि हुजूर आपने जो कहा था मेरे शेख के बारे में कि वो महबूब इलाही है, तो कैसे? तो कहा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हर जुमा की शब एक महफिल सजती, हर जुमा और औलियाए कामिलीन, मैंने रुए जमीन पे जितने भी औलियाए कामिलीन हैं सब वहाँ तशरीफ फरमा होता है नूरानी महफिल। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते हैं, ऐसे कहते नहीं, कुछ कहते हैं। देखो मेरे अजीज, क्या बात और बताऊं मेरे अजीज का। काश हम लोग को उस महफिल मुक़द्दसा का अगर एक छींटा मिल जाए, यहाँ सरकार मदीना तशरीफ फरमा। तलब करो, मैं कहता हूँ कि तलब करो। वो ऐसे सही है तो ये तलब करो, मगर तलब से पहले शादी होना पड़ेगा, सच्चा होना पड़ेगा। तो जब कहा बुआरी शाह कलंदर के, कहा कि देखो जुमा की शब में एक महफिल सजती है और उस महफिल में उनको नहीं पाते, औलियाए कामिलीन तो वहाँ होते ही हैं, मगर उसमें नहीं पाता। फिर सुन करके आए कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को अपने पूरे मुर्शिद को सुनाया। हर मुरीद अपने पीर को कुछ न कुछ कहता रहा।
तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि यार जब वहाँ जाना ना तो कहना कि हुजूर आप जो हर जुमा की शाम में जाते हैं तो एक बार मुझको भी तो ले चलिए कि हम चल करके देखें कि मेरे पीर वहाँ हैं। क्या बात है वाह सुभान अल्लाह देखो रास्ता किस तरह से हम बात औलिया अल्लाह की सोबत जरूरी बहुत जरूरी। तो फिर गए तो उन्होंने यही बात कही कि हुजूर आप तो जाते हैं मुझको भी तो ले चलिए। ठीक है आज आधी शाम में आना कर लेना खैर अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में जब अमीर खुसरो पहुंचे तो उधर वो भी तैयार थे। जैसे आए तो कहा अबू अली शाह कलंदर ने एक काम कर अमीर खुसरो मेरे हाथ को पकड़ लो और आंखें बंद कर। तो हाथ को पकड़ा आंखें बंद की या फिर कहा कि खोल जाती। जब आंख खुली तो देखा कि वही नूरानी महफिल में तुझे सुभान अल्लाह अब आंख खुली तो वही नूरानी महफिल आप देख रहे हैं कि मेरे पीर मुर्शिद अल्लाह रामा है कि नहीं महबूब इलाही चारों तरफ देख रहे हैं मैं महबूब इलाही को नहीं पा रहा निजामुद्दीन औलिया को नहीं पा रहा। तो सरकार मदीना मुखातिब ने कहा कि अमीर खुसरो देख मेरे पीछे जो पर्दा है उस पर्दे के पीछे जा वाह वाह उस पर्दे के पीछे जा। तो अमीर खुसरो जब उस पर्दे के पीछे गए तो देखते हैं कि वहाँ दो शख्सियतें एक तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है और दूसरे को पहचान नहीं है। तो गए जो मुरीदों का तरीका होता है सलाम वर्ष किए 10 कुर्सी किए कदम कुर्सी किए। अच्छा महबूब इलाही से पूछते हैं हमें कि सरकार इनको नहीं पहचानते हैं तो कहते हैं कि यही तो हुजूर गौसूर पटवारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो एक से मिलने के लिए गए थे किन किन लोगों से मुलाकात कर रही है। अब सुनने के बाद महबूब अमीर खुसरो रोने लगे कि सब लोग औलियाए कामिलीन तो सब महफिल में तशरीफ फरमा है और आप लोग महफिल के पीछे तशरीफ फरमा। तो महबूब इलाही ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हमेशा पर्दे में रखा। यही वजह है कि इरशाद बारी कि मैं अपने महबूब को 70 पर्दों के दरमियान रखता हूँ। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि सुनो मैंने अपने महबूब को अपने कवा के अंदर रखा छुपा के रखा। तो मेरे अजीज वमा सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस मजहब का पैगाम है मेरे आका का रब कायनात ने फरमाया हे महबूब सारे आलम के लिए आप रहमत हैं रहमत बन करके आए हैं और मैं कहता हूँ कि उनकी उम्मत भी रहमत बन जाए हम लोग भी रहमत बन जाए। तो बेशक हम लोगों का ये रास्ता भी हमवार है वो रास्ता देखो महफिल चलती रहती है होती रहती है ठीक है अच्छी बात है। सरकार की महफिल सजाना भी है इसके बहुत बड़ी तो बरकत है इसके काफी फवायद हैं बहुत फायदे हैं इसके मगर इसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते समझ नहीं सकते कि वो गैबी मदद भी तो कोई चीज है गायब से भी तो इंसानों को मदद मिलती है। सरकार की महफिल के फवायद ये हैं कि वो बड़े से बड़े आफातों दुनिया से वो मकान महफूज करता है। जब जिक्र सालिहीन से अल्लाह ताला रहमतों की बारिश अता फरमाता है क्योंकि अल्लाह के महबूब है अपने महबूब के सदके में उस जगह को अल्लाह ताला ऐसा मुनव्वर और मुजल्ला कर देता है कि बड़ा आफात से महफूज कर देता है। और फिर रिज़्क़ हलाल इस तरह से आराइश होती है कि बंदा खाता है खाने के बाद उसके अंदर रूही सलाहियत है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा ऐ ताईरे लाहौती जिस रिस्क से बहुत अच्छी जिस रिस्क में आती हूँ बर्बाद मत उमर खाना का इल्ला रहमतुल आलमीन ए महबूब जो भी वक्त मिला है रहमत का काम कीजिए। रहमत का काम
इबादत नहीं, रहमत का काम दूसरे के वक्त में काम आ जाएंगे। अगर वो कहता भी है तभी नहीं भी कहता है तो वक्त में काम आ जाएंगे। और यही तरीका रहा इस्लाम का, यही तरीका रहा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का। एक एक गोशा देखिए, एक एक गोशा गैरों के साथ आपने किस तरह का समझ। इसी जिंद में मैंने जो मजमून तहरीर की है, एक मजमून मैंने तहरीर की है, वो मजमून है काफिर कुफ्र इस्लाम। काफिर कुफ्र इस्लाम, उसमें पहला सवाल हमने रखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर को खत्म करने के लिए आए या कुफ्र को दिया है पैगाम में। क्या बात है। अरे मियां कुफ्र खत्म करो, कुफ्र खत्म करो। इसलिए कि सूरत में लगे धब्बे कुदरत का करिश्मा है। सूरज में लगे धब्बे कुदरत का करिश्मा है। अरे बुद्ध हमको कहे काफिर, ये अल्लाह की रहमत बोलो, रहमत बोलो। दुआ करता हूँ आप लोगों के हक में, मेरे हक में ये दुआ कीजिए कि ये सियादार इस लायक नहीं था, मगर करम जो आपके रूबरू आया है, इसलिए रहमत का पैगाम ये है बड़े खलूस और मोहब्बत के साथ मिलो। बला से कोई ज़र्ब लगाता है तो लगाने दो। इसलिए कि किसी ने कहा कि तुम तीर अपना आजमाओ मगर अपना दिल आजमा के देखो। और यही वजह थी कि आका अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुआ, खून इतने गिरे कि जिस्म के कपड़े तय हो गए। मगर आपने फिर भी उन लोगों की दुआएं, इसलिए दुआ देना सीखो और करीब होइए। आइए अब हमारा खड़े होकर के सलात व सलाम के या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या जब मदीने से सुआना, बुए जुल्फ़े यार लाना, दिल परेशान है तुम्हारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीबी या रसूल अल्लाह, जब फिराक़े जानो तन हो, तेरी उल्फत पे रहन हो, चादरे रहमत कफन हो, लब पे जारी ये सुखन हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।